and subtraction. All of you are very familiar with the basic operation of addition and subtraction. This is not a new thing for us. That's good, Shavez. Well done. So now listen carefully. This is addition and subtraction. We are already familiar about the topic. Basic addition and subtraction we know, but here we will start our concept with the another concept which we learned last week. Last week we learned about sequences. हमने last week में sequences पढ़ा था और उसमें हमने देखा था next और previous terms जो missing terms थी वो कैसे हासिल करनी है. Now first of all recall in your memory the top basic operation of addition and subtraction, then you will come to know that what is our basic requirement. Here, recall in your memory what do we mean by addition. To combine more than one number to make a total or sum. Addition में हम एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा नंबर्स को प्लस करते हैं और हमें कुछ सम मिलता है, कुछ ऐड करके उसका आंसर मिलता है. Total, what do we mean by the total? The result when numbers are added together. वो रिजल्ट जिसमें नंबर्स को ऐड किया जाता है और हमें जो आंसर मिलता है दैट इज आवर टोटल. इस टॉपिक में हम एडिशन और टोटल को इस्तेमाल करेंगे लास्ट वीक में जो हमने सीक्वेंसेस सीखा था उसको सॉल्व करने के लिए. दूसरा बेसिक ऑपरेशन, अनदर सेकंड बेसिक ऑपरेशन व्हिच वी विल यूज हियर इज सब्ट्रैक्शन. The way we do simple subtraction, we will recall in our mind. See, what do we mean by subtraction? To take away or find the difference between the numbers. In this topic, it is very important to find the difference so that we can find out the missing terms. And what do we mean by difference? The result when a number is subtracted from another number. Now I'm repeating my words to understand it, to make it clear. Subtraction में हमें कुछ इस तरह से difference find out करना है कि हमें पता चले हमारे क्वेश्चन में जो मिसिंग टर्म्स हैं वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स, लेट्स come to our page number 8. Look at the slide please, all of you pay attention. This is our question, addition and subtraction. Here we will use our addition and subtraction basic operation to solve our sequences. What question is asking for? Question is about a sequences. Question is asking complete the number sequences to open the safe. इसमें हमें एक सेफ का डिजाइन नजर आ रहा है और इसके 6 पार्ट्स हैं. इसमें 6 डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं और इन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपनी मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट करना है. जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें टर्म्स मिसिंग होंगी, शावेज लुक एट योर वर्क प्लीज. जब भी हमें कोई टर्म मिसिंग होंगी सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस टर्म में हमें कौन सा ऑर्डर या कौन सी टर्म्स मिसिंग है, किस ऑर्डर से मिसिंग है. Here are 6 parts. We will do 3 parts together. 3 parts. Rest of the 3 parts you will do by yourself. So listen carefully which part we are doing now, and leftover parts will be your homework that you should do in a copy. Now let's come to our part A. First 2 consecutive terms are missing here. Then next 2 consecutive terms are given, 42 and 52. Next term is again missing. It means we should complete the missing terms. How can we complete our missing terms? Take 2 consecutive terms, those are given to us. इसमें जो हमें 2 consecutive terms given है उनको आपने लेना है और देखना है कि इनको कैसे हमने हासिल किया है. Like 2 consecutive terms here are 42 and 52. 42 से 52 हासिल करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ा है? Here we can find out. See, look at the solution. 42 plus 10 gives 52. In other words, we can find out the difference also. How can we find out? The greater term is 52. So subtract 42 from the greater term. We will find the difference. It means
ईच टर्म हैज द डिफरेंस ऑफ 10-10, यानी हर टर्म जो हमें मिलेगी उसका डिफरेंस जो है वो 10 से हासिल होगा। और इसके लिए हमें एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है। डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि हर टर्म का दूसरी टर्म के साथ 10 का है, लेकिन वो डिफरेंस कैसे हम इसका मेंटेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। Check the order first of all. After checking the consecutive terms, after checking the difference, after finding the difference, we will see what the order question is showing. 42 के बाद 52 है, it means टर्म्स जो है वो एक किस ऑर्डर में है? बढ़ती हुई तरतीब से, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। 42 से 52 है तो नेक्स्ट जो है डेफिनेटली कुछ इससे और बड़ा होगा, और ऑर्डर जो होगा इसका कौन सा होगा? असेंडिंग, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जाता हुआ। अगर कम से ज्यादा की तरफ ऑर्डर जा रहा है मींस कि जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी वो कुछ प्लस करने से आएंगी, और वो क्या प्लस होगा? उसका डिफरेंस प्लस होगा। और जो प्रीवियस टर्म्स आएंगी वो कुछ सब्ट्रैक्ट करने से आएंगी, क्योंकि वो से स्मॉलर होंगी तो सब्ट्रैक्ट करने से आएंगी। और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? उसका डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमने एक रूल डिफाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो दोनों नंबर्स देखे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे 42 और 52। 42 से 52 हासिल करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा? 10। ये हमारे पास एक डिफरेंस है और हमें बता रहा है कि हम हर नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए 10 ऐड करेंगे। और हमने यहाँ पे एक रूल डिफाइन कर लिया, बाय एडिंग 10 वी विल गेट नेक्स्ट टर्म्स, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म को हासिल करने के लिए हमें 10 ऐड करना होगा। और अगर हम इसको ऑर्डर को कंसिडर करते हुए कि एक असेंडिंग ऑर्डर है, प्रीवियस टर्म की तरफ जाएंगे तो प्रीवियस टर्म्स उससे स्मॉलर होंगी, यानी 42 से स्मॉलर होंगी, मींस हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 10। 10 ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने शुरू में चेक कर लिया कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 10 है। तो बाय ऑब्जर्विंग वी कंक्लूड दैट डिफरेंस जो है वो सबका मेंटेन रखने के लिए हमें टर्म्स में अगर प्रीवियस टर्म्स चाहिए तो 10 को माइनस करना होगा। रूल डिफाइन करने के बाद हमने लिखा बाय एडिंग 10 वी विल गेट नेक्स्ट टर्म्स। इट मींस 52 के बाद वाली टर्म हासिल करने के लिए हमें इसमें 10 प्लस करना होगा, दैट विल बी 52 प्लस 10 विल बी 62। और 42 से प्रीवियस टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बाय सब्ट्रैक्टिंग 10 वी विल गेट द प्रीवियस टर्म्स। What are the terms? 42 minus 10 will be 32 and 32 minus 10 will be 22. I hope you got my point. If you got, then please show me with your thumbs up reaction so that I can proceed to the next slide. मैं इसको next slide पर ले जा सकूं. Dears, if you are getting, yes, very good. Those are getting an understanding, please show me with your thumbs up reaction. Good. Now, come to our B part. B part, I have left it for your homework. Now we are doing C part for the class now. Here you can see first term is missing and last term is missing. And question is showing us a decimal point between that. आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, टर्म में हमारे पास 132.5 है, नेक्स्ट टर्म में 232.5 है, नेक्स्ट टर्म में 332.5 है, और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस टर्म्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब भी हमें कुछ ग्रेटर टर्म मिल रही होती है तो हमें कुछ उसमें ऐड करना होता है। हमने क्या किया, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, 232 कोई सी भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव ले लें, 332.5 में से आप अपनी टर्म्स को माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 100 का आएगा, या 132.5 से 232.5 पर जाने के लिए आपको 100 का डिफरेंस नजर आएगा। इट मींस कि आपके पास जो नेक्स्ट कमिंग टर्म्स आ रही हैं वो 100 के डिफरेंस से आ रही हैं, और प्रीवियस कमिंग टर्म जो प्रीवियस टर्म्स होंगी वो 100 के डिफरेंस को माइनस करने से आएंगी। बाय रूल यहाँ पर 100 हमने डिसाइड किया कि एडिंग 100 we will get the next terms, and by subtracting 100 we will get the previous terms. Here I have done the difference also, but there is a, I think, typing mistake error which you can do by yourself. You can correct by yourself. यहाँ पर आप terms को 232.5 को हमने माइनस किया है 332.5 में से, 2 is missing here. So here you can write 2 by yourself. 332.5 minus 232.5 gives 100, which is the difference of the question. What is the rule here?
By adding 100, we will get the next term. To get the next term, to get the last term, what we will do, we will add 100. By subtracting 100, we will get the previous term. हमें previous term के लिए इसमें से 100 को minus करना होगा. What we did, to get the last term, we add 100 in 332.5 and last term is 432.5. And to get the first term, what we did, we subtract 100. 132.5 में से 100 को subtract किया, we get 32.5. I hope it is clear to you all. Is it clear? That's good. Now come to our another part. D part is your work for homework. F is our classwork. Now let's see the number here. Question is here, that is 9,802. Then next term is missing. Another term is here, 9,782. Next term is missing again. You can see the sequence is showing us which order? Descending order. It means to get the next term, we are to subtract something. जब हमें टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रही थी, हमें चेक किया कि हमें नेक्स्ट टर्म्स के लिए उसमें कुछ ऐड करना होता था. अब हमें सीक्वेंस शो कर रहा है एक डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें इसमें नेक्स्ट टर्म के लिए इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा. और वो क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? बाय ऑब्जर्विंग द टर्म सीक्वेंस, व्हाट वी डिड, हमने इसको देखा कि हम इसमें क्या प्लस करें कि हमारे पास कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्रिएट हो जाए और सीक्वेंस को हम कंप्लीट कर सकें. हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म 9,802 है, तो यहाँ पर कुछ माइनस होकर उसके बाद कुछ टर्म आई है 9,782 और फिर कुछ माइनस होने के बाद नेक्स्ट टर्म आई है 9,762. 62 एंड 82, ये टेंस प्लेसेस पे नंबर्स जो है ये शो कर रहे हैं कि 62 के बाद में यहाँ कहीं जो टर्म मिसिंग है वो 72 समथिंग होगी, और इसी तरीके से यहाँ कोई जो टर्म है वो 92 समथिंग होगी, और वो 10 के डिफरेंस से हमें मिल रही है. तो व्हाट वी डिड, बाय ऑब्जर्विंग द सीक्वेंस पैटर्न, वी डिड 9,762 प्लस 10 is equal to 9,772. And to get the second term, what we did 9,802 में से हमने 10 को माइनस किया और हमें टर्म मिल गई 9,792. डिफरेंस 10 का था, इसका मतलब है जब हमें टर्म्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिली हैं तो हम हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए इसमें से 10 को माइनस करते रहे हैं. और रूल हमने इसका डिसाइड किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग 10 वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म्स. Order was showing us descending order, that's why we are subtracting to get the next term. ये order हमें descending order show कर रहा है, इसका मतलब हर आने वाली next term जो होगी वो कुछ subtract करने से find out की जाएगी. So what is our answer here? By adding term, we will get the previous terms, and our sequence is showing us 9,802 first term, next term which was missing 9,792, next term which was given 9,782, and next missing term was 9,772. Last term was given. Don't write first, listen carefully. I hope it is clear to you all now. Now, that's all for today's lecture.